बीइंग ए टीचर, स्पेशली जो लोग टीचर्स हैं उनके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। घर में जब कुछ ज्यादा बोलना चालू करते हैं तो धीरे से आवाज आती है, स्कूल में भी बोलते हो, घर में भी करती है। एंड आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे दोनों बच्चे अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ ट्रेनिंग भी कर रहे थे, तो बेचारे बहुत परेशान रहते हैं। तो क्लास में तो बिल्कुल अलग हो, घर में आके तुमको क्या हो जाता है? बट एक ही प्रॉब्लम होती है, when you are in a professional front you are at your best behavior, when you are at home you are what you are. जैसे कि I don't like to talk at home, but if you meet me at the office I'll be the most garrulous guy, सबसे ज्यादा बोलने वाला प्राणी मैं ही होने वाला हूँ। तो लोग बहुत, मेरी बीवी एक बहुत अच्छी लाइन बोलती है कि तुम पैसा लेके बोलते हो। But on a serious, my name is Pratik Rai. This will be my 25th year in education. अभी मैं रिसेंटली सोच रहा हूँ थोड़ा सा मार्केट में चलना चालू कर दूँ। ये इंडिया है। There is one more problem, especially for the teachers and even as the parents. I'm a parent myself. मेरा खुद का बेटा year 12th किया। 10th तक I was the most chill guy कि दुनिया में कुछ नहीं रखा है। 10th क्या होता है? अब तो 10th वैसे रहा नहीं जैसे हमारे टाइम पे 10th था। ये डायलॉग सबने मारा है। हमारे टाइम में 10th कुछ और होता था, क्या प्रेशर होता था। प्रेशर इसलिए था क्योंकि कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट सर्विस नहीं होता था। अब तो 10th इज लिटरली सपोर्ट सर्विस देखोगे तो मैं शॉप में चला जाता हूँ, आपका 10th ही है, इट इज नथिंग सो बिग अबाउट इट, सिर्फ 10th है, कुछ नहीं आगे। हमारे टाइम में 10th नहीं किया तो यू आर गॉन। फिर हम पहुंचे 11th 12th में, जो है अब है। ये डायलॉग हमने भी दिया है। As a parent, more than as a student, I have learned this dialogue at least 1000 times. 1000 बार डायलॉग सुना है ये, जो है वो अब है, इसके बाद कुछ नहीं। ऐसा करते करते मेरी शादी हो गई। So I realized the most important lesson, like somebody asked this question, the experiences. What I did, I will try not to do it for my kids. But please understand, that is as a parenting. As a teacher myself, I train. In fact, another 45 minutes, 1 hour, I have a class again. So the problem remains the same. वो जो हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखते हैं कि हमको बच्चों को समझाना है, like and I fully agree to it, आप नहीं समझा सकते। I am dealing with somebody who is post 12th, who is graduate. They have their own thought process, own logic, own ideas, own experience. आप उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, आप उनको सिर्फ समझा सकते हैं कि this is the way it has to be done. And this is a crowd जो कि already YouTube रिसर्च करके भी आई होगी, YouTube भी देखेगी, गूगल भी सर्च करेगी, आप जो पढ़ाओगे घर जाके चेक भी करेगी, जस्ट इन केस टीचर ने सही पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। गलती से कुछ गलत पढ़ा दिया तभी तो बताने भी आएगी। So please understand, as a teacher our role is now grown literally too big. हम गलती भी नहीं कर सकते। जैसे I always, my जो जूनियर्स आते हैं ऑफिस में, मैंने बोलता है literally mark your answers, cross check it, verify it. You do not have an option of getting it wrong. I have an option. There is a reason behind it. When you are old, 20 साल हो जाते हैं तो एक दो गलती बच्चा माफ कर देता है। जो नया नया आएगा उसकी गलती कभी माफ नहीं होगी। So literally, and as somebody gave me this wonderful idea 25 years back, teaching is the most easiest role. What's so big deal about teaching? How will you agree to it? बोला आजा बेटा, हम नहीं तू ही कर ले, आके टीचिंग कर ले। So the problem remains the same. So the why I'm sharing this is because experiences would remain same. And being a parent myself, I understood 3 things. One, there are a lot of things which I wanted for my kid. It never happened. But I fully agree to what sir said, that if you want to get your son to get up early in the morning, there are 2 ways. Either send him to school. That's the only way you get up. So no, or you get up in the morning and wake him up. There's no third way. The same thing, whether if as a teacher I want to do something for my students, I have to do it myself initially. Make him understand how it has to be done. Please understand, that is something which we do it day in and day out, because हमको करके दिखाना पड़ेगा। I still give CAT every year and still get that 99. फिर मैं बताता हूँ कि मेरे अगर इंग्लिश में 94 आ रहे हैं, जिसको इंग्लिश से कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, तो तेरे तो 94 आ ही सकते हैं। Then he's like, okay, but then you have given it too many times. So students have this wonderful excuse कि they will have, but आप तो टीचर हो। मैंने बोला बेटा मैं टीचर हूँ क्वांट्स का, इंग्लिश का नहीं। मैं तुझे समझा रहा हूँ कि इंग्लिश में 90 कैसे आएगा।
Maths में तो ठीक है. So if I is simply asking an English faculty to give maths paper and get an 80, and then say if you can get an 80, or somebody who's preparing can very easily get a 90. That's how you have to do it. The same thing is applicable for us. We have to do it every single time, every single day for them. And the biggest problem, which every teacher must understand, you are as good as your last lecture. Because you are as good as your last lecture, so there is a continuous proving. हर दिन आप क्लास में घुसते हो, ऐसी कोई गारंटी कौन टीचर दे सकता है कि कल का लेक्चर वाज द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम, पर आज का लेक्चर भी सेम है. The best part about being a teacher is even after the lecture ends, you have a feeling कि अच्छा गया या अच्छा नहीं गया. You understand, and that's very clear for us to understand. Now, why I'm asking this is because that is where the motivation starts. If you're not motivated yourself right now, और आपको मालूम है, और फिर आप ये claim कर रहे हो, I give the best to the student, not possible. So trust me, it's the toughest job in the world to get up in the morning, especially teachers. I have a lot of teacher friends who at 7:30 बेचारे स्कूल पहुंच जाते हैं. मेरा पहला रिएक्शन होता है, नींद खुली रहती है. Because the biggest problem, especially with the students we have a morning class slots, when we say 7:30 to 9:30, you'll be surprised till 8:50 the students are in zone. I ask them any questions, any doubts, and they're like, so when they finally wake up, it is around 9:50. Then they start responding. The first 1 hour they do not respond. It's only like I am teaching, and they're like, मैंने बोला प्रॉब्लम क्या है? रात में पढ़ रहा था. अब ये अलग क्वेश्चन है कि रात में पढ़ रहे थे कि क्या कर रहे थे. Because this is the beautiful thing which, and as a parent, I always, whenever I talk with the parents, I always tell them, anyhow, ensure that they never study at night until 2 o'clock, 3 o'clock. Get up in the morning and study, but never study till night 2 o'clock. It sounds the most easiest thing, but unfortunately, that's not the way you study. But again, there are people who are like कि नहीं मुझे रात भर पढ़ना अच्छा लगता है, दिन में सोना अच्छा लगता है. Again, like I said, I agree to sir, don't force it. But gradually that has to change because you understand when it's your best timing. Now why we share this is majority of the exams are in the first half, mornings. So you have to be fresh during the entire morning, and that's the point. But again, one specific thing as a teacher and as a parent, which I always would like to, and then I would end the learning of the last 25 years in one line. Especially as a parent, don't become a friend to your son and daughter. Never. Friend नहीं बनना. Friends की कमी नहीं है उनके पास. आपके बच्चों के पास फ्रेंड्स की कोई कमी नहीं है. माँ बाप की कमी है. एक ही है. So please be I'll not say teacher, but be friendly to them. That's different. But don't, as a teacher, a lot of us are friendly, but we are not friends. Be friendly to them, but even as a parent, especially the parents, never become a friend to your son. एक रिस्पेक्ट लेनी पड़ेगी आपको. Gradually वो एज आएगा जब आपके बराबर हो जाएंगे. That's a different story. That's point number 1. And as a teacher, the most important thing which I always understood was keep it to yourself. When you are asked for, give the entire information. Otherwise, don't give any information. क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आप तो बहुत दिल से बता रहे हैं कि तू गधा है, but I don't know कि आप उसको कितना सीरियसली ले लो. I said something, you are not. It's like there's lot of improvement, scope of improvement. The biggest problem is school में हमको मिलता था ना कि जब होता है scope of improvement, तो we as a kid we used to go to the teacher कि what should I do? The biggest problem is now, if you say you are not good, वो आपको नहीं बोलेगा, बाहर जाएगा और एक क्वेश्चन कुछ आता नहीं है. So there is a bigger problem. Please keep it to yourself unless and until asked for. I would always give what is the best for the kid, but at the same time I will not force it onto somebody that you should be doing this. Like again, that's it. Thank you very much for the patient listening. I really appreciate it. Thank you. Good morning to everybody, and a little belated but a happy Women's Day to all the ladies here.
and thank you for coming on a Sunday. I had problems क्योंकि मेरी बीवी was not very happy that I was going on a Sunday. आज सोच रहा था कि क्या बोलूं और इवेंचुअली मैडम को मैंने देखा तो मैंने बोला कि जो मैंने थोड़े टाइम पहले बात की थी तो वही चीज़ वापस रिपीट कर देता हूँ. I thought it was very interesting and very relevant to today's children. आजकल क्या होता है कि अगर एक थाली में 3 अच्छी चीज़ दी गई हो और तीनों चीज़ हमें अच्छी लगती हो तो और फिर बताया जाए कि एक ही चीज़ खानी है बाकी 2 चीज़ नहीं खानी है तो तकलीफ़ होती है क्योंकि तीनों अच्छी लगती है या तो तीनों ट्राई तो करनी है क्योंकि पहले कभी नहीं खाया है. तो आजकल की दुनिया में शायद यही चीज़ हो रहा है कि 3 चीज़ हैं मगर हम लोग एक ही चीज़ खाने के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं और वो भी ठीक से नहीं कर रहे हैं. तो वो 3 चीज़ क्या है वो मुझे आपको ब्रीफली बताना है. सो मेरे हिसाब से या तो कई लोग कह रहे हैं बहुत सालों से कि 3 दुनिया है, ये तीनों दुनिया संभालना ज़रूरी है. Please don't take it as a religious talk over here. Take the lessons from what I'm talking about. Please understand the lessons I'm talking. Don't understand the context of religious things. So ये 3 दुनिया कौन सी है? ये 3 दुनिया है ब्रह्मा, विष्णु और महेश की. So ब्रह्मा ने क्या किया? ब्रह्मा ने ये दुनिया को सर्जा. He created the world. So when he wanted to create the world, what did he have to do? He had to create day and night. He had to create good and bad. He had to create the man and the woman. He had to create the rich who became the rich at the cost of the poor. Because they became poor, therefore the other people became rich. तो ये opposite directions ब्रह्मा को create करना पड़ा. इस ब्रह्मा की दुनिया में अगर आपको successful होना है तो आपको क्या चाहिए? इस ब्रह्मा की दुनिया में सक्सेसफुल होने के लिए आपको ब्रह्मा की वाइफ की मदद की जरूरत है. और ब्रह्मा की वाइफ कौन है? सरस्वती. सो सरस्वती मतलब क्या? नॉलेज. सो इफ यू वांट टू बिकम नंबर 1 एंड नॉट द लास्ट विच इज द ऑपोजिट, व्हाट डू यू नीड? आपको चाहिए नॉलेज. आपको अगर आगे बढ़ना है मतलब दूसरे लोग पीछे हैं तो क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए. और अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली आजकल के ज़माने में सब लोग यही दुनिया में बैठे हुए हैं कि भाई मुझे नंबर 1 बनना है, मुझे आगे बनना है, मुझे रिच बनना है एट द कॉस्ट ऑफ पुअर. सो ये एक दुनिया है ब्रह्मा की दुनिया. दूसरी एक दुनिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट दुनिया है और वो है महेश की दुनिया. सो महेश ने क्या कहा? महेश ने किया ये सब मिथ्या है, ये सब माया है, ये सब गलत है, ये कुछ ज़रूरत नहीं है. हिमालय के ऊपर बैठ के भस्म लगा के मेडिटेट करो, योगा करो, प्राणायाम करो और निर्वाणा प्राप्त करो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. यही है जो है वो. तो महेश की बीवी को अच्छा नहीं लगा. बोले नीचे भूखे मर रहे हैं सब लोग और तुम यहाँ बैठ के बोल रहे हो सब कुछ मिथ्या है, माया है, ऐसा नहीं चलेगा, नीचे जाके बचाओ. तो लोगों ने बोला ये सब तो हम करने के लिए तैयार है मगर हमारा बोर्डिंग लॉजिंग कौन संभालेगा? हमको खाना कौन खिलाएगा? पिलाएगा कौन? रहेंगे कहाँ? तो बोले चिंता मत करो, मेरी बीवी आपका ध्यान रखेगी. सो महेश की बीवी कौन? अन्नपूर्णा. दूसरा एक नाम है अन्नपूर्णा. सो अन्नपूर्णा विल टेक केयर ऑफ योर फूड, टेक केयर ऑफ योर बोर्डिंग, टेक केयर ऑफ योर लॉजिंग. आप बस स्पिरिचुअल पाथ में चले जाओ. सो ये स्पिरिचुअल पाथ अगर फॉलो कर लिया तो आपका खाना पीना रहने का प्रॉब्लम नहीं होगा. दैट वॉज द महेश's वर्ल्ड. दिस वॉज द सेकेंड वर्ल्ड. ये भी एक दुनिया है, ये भूलना नहीं है. तीसरी दुनिया थी जो थी विष्णु की दुनिया. तो विष्णु ने क्या कहा? विष्णु ने कहा कि भाई तुम्हारे पास जो है वो बांटो, तुम्हारे पास जो है वो शेयर करो. अच्छा, दान मत करो. दान मतलब मेरा हाथ ऊपर आपका हाथ नीचे, तो वो ब्रह्मा की दुनिया हो गई. चैरिटी मत करो. चैरिटी मतलब मेरा हाथ ऊपर तुम्हारा हाथ नीचे, मतलब मैं सुपीरियर तुम इंफीरियर, तो वो ब्रह्मा की दुनिया हो गया. उसने क्या कहा? शेयर करो. अगर आप 5 लोग की मदद करेंगे तो आपके 5 लोग मदद करेंगे. तो आप अकेले खुद की मदद करोगे उससे अच्छा है कि 5 लोग मदद करें. सो देयरफॉर एवरीबॉडी विल बी हैप्पी, एवरीबॉडी विल बी रिच,
एवरीबडी विल हैव अ लॉट ऑफ एबंडेंस, क्योंकि अगर विष्णु का पाथ फॉलो किया तो आपको कौन मदद करेगा? विष्णु की वाइफ। विष्णु की वाइफ कौन है? बोला लक्ष्मी। सो लक्ष्मी इज नॉट मनी, लक्ष्मी इज नॉट वेल्थ, लक्ष्मी इज एबंडेंस, कि सबके लिए बहुत है, इनफ है। मगर आप सब खुद के लिए रखोगे तो दूसरे सफर होंगे। तो सबके लिए रखो, अगर सबके लिए रखेंगे तो यू विल डू वेरी वेल। सो वो विष्णु की दुनिया हुई। सो हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल की दुनिया के अंदर? हम हमारे बच्चों को सिर्फ एक दुनिया दिखा रहे हैं और वो है ब्रह्मा की दुनिया। पढ़ो, नंबर 1 बनो, कंपटीशन बहुत है, दूसरे आगे निकल जाएंगे, तुम पीछे रह जाओगे, ये नहीं चलेगा। आजकल के बच्चे कंफ्यूज इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि उनको एक ही दुनिया दिख रही है और बोल रहे हैं कि मगर नंबर 1 बनने की जरूरत क्या है? मैं खेल क्यों नहीं सकता? मैं मेरे दोस्त को मदद क्यों नहीं कर सकता? मैं बैठ के आकाश के सामने देख क्यों नहीं सकता? सो ये सब कंफ्यूजन बच्चों के मन में आता है क्योंकि हम उसको एक ही दुनिया दिखा रहे हैं। अच्छा, तो अब ये सवाल आता है कि ये 3 दुनिया में से सबसे अच्छी दुनिया कौन सी? विष्णु की? कोई भी दुनिया सबसे अच्छी नहीं है, सब दुनिया अच्छी है। ब्रह्मा की दुनिया भी अच्छी है, विष्णु की दुनिया भी अच्छी है और महेश की दुनिया भी अच्छी है। मगर याद ये रखना है कि जब ब्रह्मा की दुनिया में रहते हो तो फिर ये नहीं सोचना है कि मुझे कोई मदद नहीं कर रहा है, मेरा कोई ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि सब खुद का ध्यान रख रहे हैं, तभी तो ब्रह्मा की दुनिया हुई। So don't complain if you are living in Brahma's world that somebody else is not taking care of me, because you are also not taking care of anybody else. You are thinking that way because you are taking care of yourself. और अगर महेश की दुनिया में रहते हो तो ये मत बोलो कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास बंगले नहीं है, मेरे को खाने के लिए 7 कोर्स मील नहीं मिल रहा है, मिशेलिन स्टार नहीं मिल, तो फिर वो विष्णु की दुनिया है, वहां रहो, आपको खाना पीना मिल जाएगा, मगर ये सब नहीं मिलेगा। और अगर विष्णु की दुनिया में रह रहे हो तो ये मत बोलो कि मेरे पास ज्यादा क्यों नहीं है, सबके पास सेम क्यों है। और ये भी कंप्लेन मत करो कि भाई मैं तो विष्णु की दुनिया में रहने के लिए तैयार हूं मगर बाकी सब ये कर रहे हैं तो मैं क्या करूं। ऐसा भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि अगर आप कॉन्शियसली और सीरियसली जो दुनिया में रहना चाहते हो उस दुनिया में रहेंगे और उसी तरीके से बिहेव करेंगे तो आपके आजू बाजू वाले सब भी वही दुनिया वाले रहेंगे और वैसे ही बिहेव करेंगे। अगर आप उस दुनिया में रह रहे हो और कंप्लेन कर रहे हो कि बाकी सब ऐसे नहीं है, इसका मतलब आप उस दुनिया में नहीं हो। सो दूसरों की गलती नहीं है, आपकी गलती है। सो थिंक हार्ड, डिसाइड। एक सवाल आता है कई बार लोगों का कि भाई मुझे 2 दुनिया में रहना है, मुझे तो महेश की दुनिया भी अच्छी लगती है और ब्रह्मा की दुनिया भी अच्छी लगती है, तो क्या करना? आपकी दुनिया है, आप डिसाइड करो। सुबह महेश में रहो, शाम को ब्रह्मा में रहो। कौन रोक रहा है आपको? कोई नहीं रोक रहा है। हर घंटे को एक चेंज करना है तो भी करो, हर मिनट में चेंज करना है तो भी करो, मगर जिस दुनिया में रह रहे हो उस तरीके से व्यवहार करो, नंबर 1। और नंबर 2, जिस दुनिया में रह रहे हो वैसा आपके साथ दूसरे लोग व्यवहार करेंगे, वैसा एक्सपेक्ट करो और बिहेव करो तो सही रहेगा। हमारा प्रॉब्लम यह होता है कि हम ये दुनिया में हैं मगर चाहते हैं कि दूसरे लोग दूसरी दुनिया से हमारे साथ व्यवहार करें, वो नहीं चलेगा। मैं ये आपको कह इसलिए रहा हूं कि मैं मानता हूं कि इफ यू आर द इन्फ्लुएंसेस फॉर योर चिल्ड्रन एंड यू हैव सो मेनी पीपल यू आर इन्फ्लुएंसिंग, एंड इवन इफ यू कैन इन्फ्लुएंस 1 पर्सन दैट्स वेरी बिग, तो ये याद रखिए कि सिर्फ एक दुनिया बताना गलत है और इसीलिए ये कंफ्यूजन हो रहा है। और अगर एक बच्चा कुछ और तरीके से बिहेव कर रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो कम है, वो ज्यादा है। एक मुझे बहुत अच्छी चीज मेरी बेटी ने एक बार समझाया था मुझे, जब वो छोटी थी तब मैं उसको कह रहा था कि मेरा बेटा ये कर रहा है, तू क्यों नहीं कर रही है। So she didn't explain it to me in these words, but this was the lesson that I learned कि कोई भी व्यक्ति नहीं इंटेलिजेंट है ऐसा नहीं है, सब इंटेलिजेंट है। एवरीबडी इज इंटेलिजेंट एंड एवरीबडी इज अ सुपर पर्सन एंड एवरीबडी इज ब्राइट। एग्जाम्पल पे, इफ यू हैव somebody who is very good at maths and if you've got somebody who is very good at arts, अगर ये आर्ट्स वाले बंदे को अगर तुम मैथ्स का टेस्ट दोगे
तो he is going to be a failure. That does not make him a failure. और अगर मैथ्स के बंदे को अगर आज का एग्जामिनेशन दोगे तो he is going to be a failure. That does not mean that he is not intelligent. Everybody is intelligent in some way or the other. We are evaluating them on only one way. And in that evaluation, if they don't pass, they are bad. That's not right. That's not right. We cannot raise children on the premise of telling them that they are not good because this examination they have not passed. That is probably the wrong examination for them. Probably what you want is that, चलो हम लोग स्कूल्स में हैं, हमारे बच्चे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, तो हमको वही एग्जामिनेशन पे उनको इवैल्यूएट करना है, मगर फिर हम उनको ये दूसरी दो दुनिया नहीं दिखाएंगे, वो क्या सही है? अगर कोई बच्चे को दूसरे दुनिया में जाना है तो ये क्या सही है? मेरा बेटा, दूसरी दौर की बात नहीं कर रहा हूं, मेरा बेटा पढ़ाई में एवरेज, डिसाइड किया कि उसको लॉ करना है, एवरेज, वेरी इंटेलिजेंट, डिड वेरी वेल, बट इन मार्क्स एवरेज. उसने इंटरव्यूज दिया, उसको करीबन आज से 7-8 साल पहले अ फैंटास्टिक लॉ फर्म इन बॉम्बे के अंदर उसको जॉब मिल गई. बहुत बढ़िया पे, एक्सेलेंट पे, मतलब outstanding, 1 lakh plus per month for a boy of 23 years old who is living in Bombay is very, very good. This is the take home pay. He's doing very well for himself. अकेला था तो बोलता था कि पापा मैं अकेला अच्छा नहीं लगता है, ये करना है, सारे दिन काम करता रहता हूं मगर टाइम नहीं है कुछ भी करने के लिए. तो मैंने उसको 1-2 वीडियोस भेजा कि भाई मेडिटेशन कर. भाई पता नहीं गलत किया या सही किया, आज वो सब उसका प्रैक्टिस छोड़ के कोयम्बटूर में सदगुरु का लॉयर बन गया है. सुबह 3:30 बजे उठता है, प्राणायाम, योगा और मेडिटेशन करता है, 10 बजे काम शुरू करता है, 10:30 बजे खाना खाता है, शाम को 4 बजे तक उसका काम करता है, 4 बजे के बाद खुद का काम करता है, रात को 8, 8:30 बजे सो जाता है. मैं सोचता था मेरा बेटा बड़ा होगा, हम लोग दोनों बैठेंगे, कैरम खेलेंगे, जूस पिएंगे, मजानी लाइफ करेंगे. उसकी जगह मैं जूस पीता हूं तो मेरे को बोलता है पापा ये सब क्या कर रहे हो? सुबह जल्दी क्यों नहीं उठते हो, रात को जल्दी सोते क्यों नहीं हो, ये प्याज और लहसुन क्यों खाते हो, सात्विक फूड. उसने महेश की दुनिया अडॉप्ट कर ली है. वो बोलते क्या ये सब कुछ नहीं है. और मैं यही सोच रहा हूं कि यार इतना पोटेंशियल है, क्या कर सकता है, कहां जा सकता है. बट बड़े सालों के बाद, मतलब 1-2 साल के बाद मेरी बीवी ने मुझे समझाया और मेरी बेटी ने समझाया कि भाई उसने ये वाली दुनिया चूज की है और वो खुश है. अब मेरे आंखों में अभी भी आंसू आ जाते हैं, मगर फिर भी अब मेरे को थोड़ा एक्सेप्टेंस आया है कि हाँ उसने वो दुनिया चूज की है. अगर वो मेरी दुनिया में आएगा मुझे अच्छा लगेगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं. ये वीडियो देखेगा तो बोलेगा डैड एक्सेप्टेड मी, ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर ये दुनिया में आएगा तो अच्छा लगेगा, मगर ये दुनिया में रह के भी you know what he can follow that same path. But the point is that there are 3 paths at least, and these are the 3 different paths, and we have to expose our children to all these 3 paths and accept the choice that they make. That is what is important. And we need to understand that none of the paths are wrong, all the paths are right. And we must understand that everybody is intelligent, nobody is not intelligent, nobody is dumb. They are intelligent in different ways, in their own ways. मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये लोग समझने लगे, और आप जैसे लोग, आपके पास जितने भी बच्चे हैं, टीचर्स के पास बहुत सारे, पेरेंट्स के पास 1-2, सबको ये चीज एक्सपोज करना शुरू कर दे, तो आई थिंक द वर्ल्ड वुड बी अ मच बेटर प्लेस देन व्हाट इट इज टुडे. I had come prepared to talk to parents and not teachers. I'm a little scared that I'm talking to teachers right now than parents. But I'm even more scared to say, okay, please ask me questions if you have any. But yeah, I will say that. Please ask me questions if you have any. Yes, ma'am. So these days, parents Please sit and talk. Please sit and talk. Parents are only not making the children learn how to accept failures. How will the children learn this? So, जैसे मैंने कहा वैसे कि अगर आपको ब्रह्मा की दुनिया में रहना है तो आपको उस दुनिया में रहना पड़ेगा और आजू बाजू वाले खुद वैसे हो जाएंगे. अगर आप ये सोचोगे कि मैं ब्रह्मा की दुनिया में मगर आजू बाजू कोई नहीं है
तो आप सफर करोगे और कोई नहीं करेगा। मैं कहना यह चाहता हूं कि पेरेंट्स क्या कर सके ये आपके कंट्रोल में नहीं है। सवाल खाली यह पूछना है कि आपके कंट्रोल में क्या है। वो बच्चे 4-5 घंटे ही आपके पास है, उससे ज्यादा नहीं है। ये मैं समझता हूं, आप भी समझते हैं, सब समझते हैं। मगर वो 4-5 घंटे में जो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, शायद वो पेरेंट्स 24 घंटे में नहीं कर पाते। तो आप जो कर पाओ वो करो। अगर हम ब्रह्मा की दुनिया में रह के बोलेंगे कि लोग मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम होगी आप ही को और किसी को नहीं होगी। विष्णु के दुनिया में रह के हम बोलेंगे कि ब्रह्मा की तरह मुझे नंबर 1 बनना है, नंबर 2 बनना है और मैं नहीं हूं, तो फिर वो नहीं, विष्णु की दुनिया में भी नहीं रहोगे और ब्रह्मा की दुनिया में भी नहीं रहोगे। So I understand your problem and it is a problem and I accept it and I think everybody over here will accept it. I'm not denying that. I also agree with you. But having said that, I think it is more important to understand that we have this limited time with ourselves, with the children. Let's focus on that. What the parents do is their problem. हम लोग हमारा खुद का पूरा नहीं कर सकते तो दूसरे की पूरा करने की कहाँ कोशिश करेंगे? So I'm sorry I'm not giving you a concrete answer, but this is how it is. Though there could be another alternative and that is spend more time with the parents and educate them. But then आपको बच्चों को एजुकेट करने में से टाइम नहीं आता है तो पेरेंट्स को कब एजुकेट करोगे? तो stick to the बच्चास which is your focus. Yes, ma'am. Actually, I just want to ask, if a child is not motivated, very much not interested in a course because he thinks that it is of no use, this is not going to work anymore in future, then why should I study? How to explain it? Why do you want to explain to them? But So there is something what needs to be explained. See, I have been that child. Huh? That has been me. Okay, so I identify with what you're saying. What I'm saying, why do you want to explain to the child is the wrong answer. I'm sorry. I think क्या करना चाहिए is very straightforward कि बेटे मेरे जो शब्द हैं वो शब्द यूज करने की जरूरत नहीं है। आप यू विल बी बेटर एट एक्सप्लेनिंग थिंग्स कि ये 3 टाइप की दुनिया है और इस दुनिया में अगर रहना है तो ये नॉलेज इंपॉर्टेंट है। दैट इज नंबर 1। अगर वो नहीं करोगे तो ये दुनिया में नहीं रह पाओगे। दूसरी दुनिया ये है, तीसरी दुनिया ये है। इस वक्त इस एज में कौन सी दुनिया सही है ये तुमको डिसाइड करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो देयरफॉर तीनों दुनिया के लिए एक्सपोज हो जाओ और फिर एक दिन डिसाइड करो कि तुमको कौन सी दुनिया में रहना है। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, आई वेरी वेरी स्ट्रांगली बिलीव दैट मोटिवेशन इज अ मिथ। मोटिवेशन करने की कोशिश करना ही नहीं चाहिए क्योंकि मोटिवेशन अगर करोगे तो हर रोज करना पड़ेगा। नहाने जैसी चीज है, एक दिन 24 घंटा नहा लिया तो फिर 24 दिन तक नहीं नहाएंगे तो नहीं चलेगा, हर रोज नहाना पड़ेगा। तो अगर आप मोटिवेशन के पीछे पड़ जाओगे तो आपको हर रोज मोटिवेशन करना पड़ेगा, आप ड्रेन हो जाओगे एनर्जी से। then So- how to find out? So find out what? How to help them? So trust me when I'm telling you that nobody can help anybody. You can only show them paths. You can take the horse to the water. The horse will have to drink the water. आप उसको रास्ता दिखा सकते हो और वो रास्ता वो चल सकता है, खुद को चलना पड़ेगा। और इस वक्त चलो ये सब्जेक्ट आया है, आपने पूछा है तो कुछ और बोल लेता हूं। दुनिया के लिए एक्सपोज हो जाओ और फिर एक दिन दुनिया में रहना है। दैट इज नंबर 1। नंबर 2 इज अ मिथ। कोशिश करना ही नहीं चाहिए क्योंकि मोटिवेशन अगर करोगे एक दिन 24 घंटा ना लिया तो फिर 24 दिन तक आप मोटिवेशन के पीछे पड़ जाओगे एनर्जी से। फाइंड आउट व्हाट? How to help? So paths. Water, the horse will have to drink the water. आप उसको रास्ता दिखा, वो चल सकता है, खुद को। और इस वक्त चलो ये सब्जेक्ट आया है, आपने पूछा है तो कुछ और बोल लेता हूं। कहां गया? और फिर एक दिन दुनिया में रहना है। दैट इज नंबर 1।
कोशिश करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक दिन 24 घंटा ना लिए आप मोटिवेशन के पीछे पड़ जाओगे एनर्जी से। पाथ्स, वाटर, द हॉर्स विल, वो चल सकता है खुद को। ये सब्जेक्ट आया है, आपने पूछा है तो कुछ और बोल लेता हूं। कहां गया? और फिर एक दिन एक दिन 24 घंटा ना लिए आप मोटिवेशन के पीछे पड़ जाओ। पाथ्स, ये सब्जेक्ट आया है, आपने पूछा है तो कुछ और बोल लेता हूं। कहां गया? और फिर एक दिन ये सब्जेक्ट आया है, आप